What's up, everyone? Profil here. Welcome back to another episode of the 915 Daily. Today is Wednesday, 20th of May, and today is Sensex 1DT. But before talking about that, let's talk about Nifty. तो मैंने कल भी ये ऑब्जर्वेशन आपको दिखाया था. नो मैटर व्हाट हैपन्स ऑन एन इंट्राडे बेसिस, नो मैटर वेयर द मार्केट ओपन्स, गैप अप और अ गैप डाउन, लास्ट 4-5 दिनों से यू कैन नोटिस दैट क्लोजिंग प्राइस जो है कहीं ना कहीं 23,600 एंड 23,700 के आसपास ही हो रहा है. अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो देन इट गेट सोल्ड इनटू एंड द मार्केट एंड्स अप समवेयर अराउंड 23,650. अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है देन वी रैली एंड वी क्लोज somewhere around 23,650, 23,700. Even today, same scenes, markets almost gap down by almost 220, 230 points, almost 1% के आसपास एक बड़ा gap down markets में दिखाया. But right from the open, the markets rallied and we closed at the day's high. And again, कहीं ना कहीं 23,600 and 700 के बीच ही market close हुआ है. So, looking at what the markets have been doing over the last 4 days, I feel that यहाँ पे वापस इस range के अंदर वापस markets को एक pop देना चाहिए. And once market starts to trade about 24,000 levels, it's not going to take long for the markets to actually reach 24,500, 24,600 levels. But again, वहाँ पे क्या actually breakout होने वाला है और वहाँ पे another round of bull trap होके markets नीचे जाने वाला है, it all depends on the macro factors. So at this point, the global scenario, the geopolitics, it is a joke because one day we are seeing that Trump is talking about, oh, we are making great progress and we are very close to having a truce and negotiation and all sorts of things. And the next day we see him literally threatening Iran that he's going to wipe them off of the face of the earth. So nobody knows what's the situation is, but India is on the receiving end of all these things. Though we are not directly involved in the war, we are facing the heat of all that thing. The inflation is going to rise. The food prices is going to rise, oil prices are going to rise, and that will have second order effects. And agar inflation hit ho jata hai and especially couple it with AI led layoffs, so that's going to be very tricky times for the Indian markets. And उसके बाद जब इन्फ्लेशन स्टार्ट होता है लोगों के पास स्पेंडिंग पावर कम हो जाता है एंड सरप्लस कम हो जाता है, देन दैट विल आल्सो ड्राई अप द SIP इनफ्लोस. एंड जब SIP इनफ्लोस कम हो जाता है तो म्यूचुअल फंड्स के पास मार्केट्स को बाई करने के लिए पैसा नहीं होता है. एंड एट दैट पॉइंट इफ द FII स्टार्ट सेलिंग अगेन, देन यहाँ पे शॉक अब्जॉर्ब नहीं हो सकता एंड द मार्केट्स माइट बी फॉलिंग लोअर. बट आई होप दैट डजंट हैपन. आई एम जस्ट laying out all the scenarios with you guys. And another thing that to note is the MTF book, that is margin trading facility का जो book भी है काफ़ी aggressively grow हो रहा है. lot of brokers are pushing it aggressively and most of these MTF stocks are non-F&O stocks. तो basically ये क्या है, like F&O में क्या होता है कि लॉन्ग पोजीशंस भी बनते हैं, शॉर्ट पोजीशंस भी बनते हैं, बट मोस्ट ऑफ दीज MTF पोजीशंस आर लॉन्ग ओनली पोजीशंस. तो अगर मार्केट्स कंटिन्यूसली और यहाँ से वापस 21,000 21,500 के आसपास मार्केट्स आता है तो देन वी कैन सी दैट सम ऑफ द MTF बुक इज ऑल्सो गोना गेट लिक्विडेटेड एंड दैट विल further push the markets down because breadth काफ़ी weak हो जाएगा. So all that aside, but looking at what the price action is saying, you can notice that any dip towards 23,300, 23,400, the markets are absorbing that fairly well. So whether this is some sort of a consolidation to actually bounce back or whether it's a consolidation to or a distribution to actually go down, time has to tell. But as traders, we just have to, follow the price. Okay. So tomorrow is again Sensex expiry, and to talk about today's Sensex straddle, the straddle actually opened at a decent value because कल का जो स्ट्रैडल था 860 के आसपास क्लोज हुआ था एंड आज भी मार्केट्स 800 के आसपास ही स्ट्रैडल ओपन हुआ एंड विद इन द फर्स्ट फ्यू मिनट्स द स्ट्रैडल एक्चुअली गॉट बैक टू 850. लाइक आफ्टर अ लॉट ऑफ टाइम वी आर सीइंग दैट जो कल का जो हाई है उसके आसपास आज भी ट्रेड कर रहा है बिकॉज ओवरनाइट डीके किक इन नहीं हुआ बिकॉज वी ओपनड ऑलमोस्ट 1% ऑफ अ गैप डाउन एंड दिस गैप डाउन ऑल्सो केम आफ्टर अ नैरो रेंज डे बिकॉज मैंने कल भी आपको दिखा रहा था कि लाइक हाउ द डेज रेंज हैज़ बीन वेरी नैरो for after a very long time because Nifty के terms पे 400-500 points का range बन रहा था, but yesterday was the first day where the market stayed in a small 150 to 200 point day and because of that you could notice that Nifty का जो monthly options है वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा crush देखने को मिला था कल. And yeah, Sensex was also expecting not a big gap up or a gap down, but because we opened with a big gap down, the straddles, the walls actually held in value. But 850 से लेके 650 तक, not even 650, 620 तक almost एक 200 points का एक क्रश देखने को मिला है. But this crush was definitely not free of cost because यहाँ पे हमको almost एक decent amount
अमाउंट ऑफ अपमूव भी हमको देखने को मिला है, ठीक है। सो आप देख सकते हैं कि द फर्स्ट 15-20 मिनट्स वर क्वाइट वोलेटाइल हियर एंड लो बनाया विद इन द फर्स्ट 1-2 मिनट्स एंड 74,500 से लेके द मार्केट्स रैलीड all the way till 75,400. That is almost 900,000 points का एक रैली देखने को मिला एंड इन बिटवीन देयर वर ऑल्सो डिसेंट अमाउंट ऑफ पुल बैक्स। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज 300 पॉइंट पुल बैक एंड दिस इज ऑल्सो 75,000 के आसपास, दिस इज ऑल्सो अ क्विक 300 पॉइंट पुल बैक एंड अगेन यहाँ से 75,250 से लेके 74,990 तक, दिस इज अगेन अ 300 पॉइंट पुल बैक। सो अ टोटल ऑफ 900 to 1000 point rally with 3 multiple 300 point pullback while the straddle was pricing in somewhere around 700 points. तो straddle के प्राइसिंग के हिसाब से these pullbacks were quite manageable, but again every time these pullbacks again ended up breaking the next swing high. यहाँ पे भी swing high break हो गया, यहाँ पे भी next swing high break हो गया, यहाँ पे भी बना and then again यहाँ पे swing high break हो गया. So there was a lot of delta cost that was involved, but nonetheless if you were in slightly in the direction of the trend, अगर थोड़ा बहुत आपका bullish strangles या bullish straddles भी होता तो then also you would have done all right. इतना अच्छा पैसा नहीं बना होता, but at least you wouldn't have lost money today because there was almost 250 points of क्रश टुडे, ठीक है। तो कल के लिए क्या प्लान बनाना चाहिए? 600 रुपीज़ के आसपास स्ट्रैडल क्लोज हुआ है तो मोस्ट प्रॉब्ली 450 के आसपास स्ट्रैडल ओपन होने वाला है। एनीथिंग अबव 500 आई वुड कंसिडर इट अ बोनस। तो अगर 500 के ऊपर अगर स्ट्रैडल मिलता है एंड स्पेशली इफ यू ओपन विद अ गैप डाउन 75,000 के आसपास, तो देन 75,000 बिकम्स सम सॉर्ट ऑफ अ मैग्नेट फॉर टुमारोज एक्सपायरी। एंड नोट डाउन दैट कल का जो निफ्टी एक्सपायरी था वो रिलेटिवली ईजी एक्सपायरी था बिकॉज इन स्पाइट ऑफ द फर्स्ट 45 मिनट्स ऑफ वॉलेटिलिटी द markets were not that punitive for the option writers or short gamma traders. So tomorrow again expect a bit of volatility and expect a bit of trickiness. And यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 75,500 जो है एक राउंड नंबर भी एक and also आज का जो हाई भी है, but depending upon like how the markets have closed, अगर मार्केट 75,300 75,200 के आसपास ओपन करेगा तो अगेन सिमिलर काइंड ऑफ अ पैटर्न, अगर 9:30 10 o'clock के पहले यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिल जाता है then we should be going in the direction of the breakout. We should be trading the breakout itself and हमको ब्रेकआउट ट्रेड करने के बाद भी हमारा जो हाई है दिस इज 75,800 75,900 के आसपास कहीं ना कहीं मार्केट रेजिस्टेंस हिट करने वाला है। बट ये रेजिस्टेंस तब ब्रीच होगा इफ द मार्केट ओपन्स विद अ बिग गैप अप, दैट इज 75,300 के आसपास मार्केट्स क्लोज दिया है, बट 75,700 के आसपास अगर मार्केट ओपन होता है एंड फर्स्ट 30-45 मिनट्स के पहले लाइक यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिल जाता है तो देन ये ब्रेकआउट मार्केट्स माइट कंटिन्यू टू हेड हायर। बट यहाँ पे ब्रेकआउट ट्रेड करना थोड़ा लो रिस्क रिवॉर्ड सिचुएशन बन जाएगा बिकॉज मार्केट्स ने गैप अप के थ्रू ऑलरेडी इतना ज्यादा डिस्टेंस कवर कर चुका होता है एंड देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल हु वुड वांट टू बुक देयर प्रॉफिट्स फ्रॉम द लॉन्ग पोजीशंस। तो यहाँ पे मेरा प्रिफर्ड वे जो होगा वो ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट को ट्रेड करना होगा बिकॉज एक बार ब्रेकआउट देने दो एंड मार्केट्स को वापस आने दो एंड देन व्हेन इट रीटेस्ट एंड व्हेन इट गोज बैक यहाँ पे रिस्क थोड़ा हमारा कम रहेगा एंड इमीडिएटली हमको हमारा ट्रेड्स को एसएल से लेके ब्रेक इवन तक हमारा जो स्टॉप लॉस है हमको मूव करने का मौका मिलेगा इफ यू ट्रेड द रीटेस्ट। बट यहाँ पे अगर हम लोग ब्रेकआउट ट्रेड करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा रिस्क ज्यादा हो जाएगा एंड अगर ब्रेकआउट फेल हो जाता है तो यू विल अगेन एंड अप टेकिंग अ हिट। बट अगर इस ब्रेकआउट को हम लोग ट्रेड करेंगे तो देन दिस इज अ गुड सेटअप एंड यहाँ पे हमारे पास छोटा सा एक स्विंग भी मिल जाता है एंड इतना स्टॉप लॉस के साथ लेट्स से लाइक अराउंड 200-150 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ हमारे पास एक 300-350 पॉइंट्स का एक पोटेंशियल टारगेट मिल सकता है। सो दिस आई वुड वांट टू ट्रेड द ब्रेकआउट एंड दिस आई वुड वांट टू ट्रेड द रीटेस्ट, ठीक है। बट लेट्स से मार्केट्स अगर गैप डाउन खुल जाता है अगेन टुमारो देन मार्केट्स के पास एक काफी वाइड रेंज मिल जाता है तो मार्केट्स के पास मेरे हिसाब से तो दिस शुड बी द रेजिस्टेंस दैट इज 75,300 के आसपास एंड ऑल्सो दिस शुड बी द सपोर्ट। लाइक यहाँ पे मुझे सपोर्ट नजर आ रहा है दिस लेवल, दिस वुड बी द सपोर्ट दैट इज 74,800 एंड 75,300। सो मार्केट्स कहीं ना कहीं 75,000 के आसपास आता है तो ये काफी बेस्ट सिनेरियो रहेगा आउट ऑफ ऑल द सिनेरियोज फॉर ऑप्शन राइटर्स बिकॉज 75,000 पे हम लोग स्ट्रैडल बना के बैठ सकते हैं विद स्मॉल क्वांटिटी। ऑफ कोर्स यू शुड बी विलिंग टू होल्ड ऑन टू द मार्क टू मार्केट वेरिएंस एंड अगर 450 रुपीज पे भी आपको स्ट्रैडल मिलता है देन ऑल्सो इट्स वर्थ इट बिकॉज 300 पॉइंट्स का ऊपर कवरेज एंड 300 पॉइंट्स का नीचे कवरेज मिल जाता है। हम लोग
लोग यहाँ पे स्ट्रैडल को होल्ड कर सकते हैं। नव अगर एक बड़ा गैप डाउन खुलता है, लेट्स से यहाँ पे अगर मार्केट खुल जाता है, सो बेसिकली समथिंग इज अगेन चेंज्ड, बिकॉज मार्केट्स में इंट्राडे में काफ़ी अच्छा एक बाइंग दिखाया एंड काफ़ी अच्छा एक बुलिश मोमेंटम आया, बट सडनली इफ द मार्केट इज सीइंग अनदर बिग गैप डाउन, इट मीन्स दैट समथिंग हैज फंडामेंटली चेंज्ड। तो यहाँ पे अगर मार्केट इस लेवल के आसपास आएगा, इस जोन के आसपास आएगा, तो डेफिनेटली आई वुड वांट टू गो लॉन्ग ऑन द मार्केट्स। बट यहाँ पे अगर मेरा स्टॉप लॉस जाता है तो आई शुड बी विलिंग टू गिव द स्टॉप लॉस एंड चेंज माई बायस एज वेल, बिकॉज इवन दो मार्केट्स शो लाइक इंट्राडे बुलिश मोमेंटम, बट लॉन्ग टर्म पे स्ट्रक्चर जो है वो सेल ऑन राइज काइंड ऑफ अ स्ट्रक्चर ही है। तो अगर यहाँ पे जाता है मार्केट, इस लो को तोड़ता है, तो देन आई वुड वांट टू गो इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। बट ये ट्रेंड जाने से पहले ना मैं यहाँ पे एक हायर प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेना चाहूँगा, विच इज़ अ मीन रिवर्शन ट्रेड। तो यहाँ पे मैं पहला मीन रिवर्शन ट्रेड लूँगा एंड दिस इज़ अ स्टॉप एंड रिवर्स काइंड ऑफ अ ट्रेड। तो पहले मैं इनिशिएट करूँगा, तो अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो देन आई वुड वांट टू रिवर्स माई पोजिशन एंड गो इन द डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड। बट डिपेंडिंग अपॉन हाउ द मार्केट्स हैव क्लोज टुडे, बड़ा गैप डाउन जो है थोड़ा मेरे लिए लो प्रोबेबिलिटी काइंड ऑफ अ सिनेरियो है। बड़ा गैप अप का मैंने सिनेरियो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर मार्केट्स फ्लैट खुलता है तो देन ट्रेड दिस ब्रेकआउट, बड़ा गैप अप खुलता है तो वेट फॉर द ब्रेकआउट हियर एंड ट्रेड द रीटेस्ट। बट अगर मार्केट इसके बीच अगर खुलता है, लेट्स से इसके बीच अगर खुलता है, तो देन वेट फॉर द मार्केट्स टू पिक अ रेंज। तो मार्केट किसी भी एक रेंज में आ सकता है, तो यू कैन टेक मल्टीपल मीन रिवर्शन ट्रेड्स विद स्मॉल स्टॉप लॉसेस, बेसिकली स्कैल्पिंग काइंड ऑफ अ ट्रेड्स ले सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मल्टीपल टाइम्स मार्केट्स ने एक डबल टॉप पैटर्न बनाया एंड सेल ऑफ आने से पहले, even before we hit the double top, there were initiative sellers that actually took the markets down. So यहाँ पे फिर से एक मीन रिवर्शन ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं if the market opens यहाँ पे 25,475, 450, 75,500 के आसपास होता है एंड मार्केट ट्रैवल्स ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स। तो यहाँ पे एक 76,000 का कॉल्स भी हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं विथ स्टॉप लॉस एज द स्पॉट लेवल। जब तक मार्केट 76,000 तक नहीं आता, उस ऑप्शन को हमको होल्ड करना पड़ेगा। यस, यहाँ पे थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड आपके अगेंस्ट रहने वाला है, बट ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है एंड दैट्स हाउ ऑप्शन सेलिंग वर्क्स। एंड या दीज आर माई फ्यू सिनेरियोज। मेरे लिए बेस्ट सिनेरियो जो है वो छोटा सा एक माइनर गैप अप मार्केट खुलना चाहिए, दिस समवेयर अराउंड 75,100 और 74,900। ये 200 पॉइंट्स के बीच में मार्केट्स कहीं पे भी खुलेगा तो मार्केट्स विल एक्ट एज 75,000 विल एक्ट एज अ मैग्नेट फॉर द मार्केट्स एंड मार्केट्स 75,000 के आसपास डिली डैली करता रहेगा। बट ऑफकोर्स विद अ डिसेंट अमाउंट ऑफ रेंज टू एक्चुअली ट्रैप कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स, स्टॉप लॉसेस उड़ने वाला है। बट यहाँ पे अगर 75,000 स्ट्रैडल्स को आपको ट्रेड करना भी है तो देन ट्रेड विथ वेरी स्मॉल साइज, 15% साइज है, बिकॉज आपको अच्छा खासा 400 रुपीज मिलता है। बट यू शुड बी इन अ पोजिशन टू एक्चुअली सिट थ्रू द मार्क टू मार्केट स्विंग्स, बिकॉज आजकल मार्केट का रेजिम ऐसा है ना, विदाउट मार्क टू मार्केट स्विंग्स आपको ऐसे लीनियर डीके, लीनियर क्रश ऐसे मिलेगा नहीं। द walls are perfectly priced and almost all the time VRP is negative. Realized volatility is almost always higher than the implied volatility. So it's not very easy as an option writer to be making money here. So one has to go with caution and yeah, that's my plan for tomorrow's expiry, guys. I'll see you again after tomorrow's markets. Till then, take care. Bye-bye. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.